Good morning, everyone, and welcome to the fifth Forensic Friday or the phase two. This is a webinar on the investigation of share market manipulations. You will get to see a lot of interesting things today. We will, talk about how the share market data is actually, analyzed to identify situations where people are doing, pump and dump and IPO manipulations and things like, buying and selling themselves to either raise the price or drop the price and things like that. So it's going to be a very interesting webinar. And I have my colleague, Mr. Shekhar Khanna, who is going to be presenting this today. But before I begin, I'll just run our introduction video. Shekhar, may I share the screen, please? Thank you.
Thank you very much. Thanks for watching. And now I will hand you over to my colleague, Mr. Shekhar Khanna, and he will then show you all the actions related to share market manipulation. Over to you, Shekhar. You are muted, Shekhar. We cannot hear anything. Please start from the beginning. Hello and welcome to the fifth Forensics Friday phase 2 webinar of Forensics Group. Today we are looking into the share market manipulation by the tool called TDAMS, Transactional Data Analysis and Management System tool. Basically, share market manipulation. What is share market manipulation? Manipulation means to manipulate any share by the investor by controlling it and artificially affecting the price of securities. So first of all, I'll start with the stock trading. Okay, but before that, I would like to tell you regarding our tool, which is called TDAMS, Transactional Data Analysis and Management System. Basically, transactional data, which is very huge, like normal, normal data of CDR and IPDR is very low when it comes to matching with that huge amount of transactional data. There is a thing called scribe. Scribe is basically a scribe issue or a bonus issue is when a company creates a new share or awards to an existing shareholders. So a scribe basically comes in this stock trading institutions. So handling the scribe data could be around 40 lakhs, 50 lakhs for a normal single scribe. So it is a very huge transactional data when it's come to analysis it in Excel or in any other model. So a regulatory agency gets huge amount of transactional data from various stock trading institutes. Okay, now what is stock trading? So stock trading refers to buying and selling of a stock in a particular company. Okay, if you own the stock, you own a piece in the company. So stock trading institutions are basically stock exchange, security exchanges, and the exchanges where stockbrokers and traders can buy and sell such as shares of stocks, bonds, and other financial institutes, okay, or instruments. This data arrives in different formats, file formats, like Excel, TXT, CSV, XLSX. So it is a very huge talent for an investigator to normalize this in a informative way, because the information in this is very huge. We need some special skills in Excel, like for understanding the data and for getting the relevant information in the form of reports which we want from the investigator. So it is very difficult to see the underlying pattern of the frauds involving the trade data. So we need something intuitive solution and user-friendly solution for fixing our problem, like for importing the data in a very easy format and in a very easy way, and then putting it out and putting very informative information like in a simple and a single click way. So we made a tool called TDAMS, Transactional Data Analysis Management System, and I will show you the tool today. So various data like trade logs, order logs, IPO logs are data is given by the strong exchanges in a TXT format, TSV format, CSV, XLS, XLSX. We our tool TDAMS will provide the output in a tabular format, and with the help of IBM i2 Analyst Notebook, we will provide the output in the graphical formats also for easy understanding. Okay. Now, we will basically extract the data, transform the data, and load
the data from the raw files containing logs like trade logs, order logs, and IPO logs. And after that, we will generate all the things on various filters like date, time, price, quantity, account number, PAN number, buyer sell, seller sell, and we provide like synchronized trading, circular trading, last traded price analysis, wash trade, counterparty analysis, front trader, insider trading, IPO bidding, etc. Then we can easily send the data to the analyst notebook part. So let me tell you something about stock trading institutions. Like there are 6 types of institutions are there, like endowment funds, commercial banks, mutual funds, hedge funds, pension funds, insurance funds. So अगर हम कंपनी में हमारे पास अगर हमें किसी कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग का कुछ उसका शेयर अगर सेल करना है, बाय करना है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी से लेते हैं तो हम उस कंपनी में हिस्सेदारी कर लेते हैं, हम हिस्सेदार बन जाते हैं, पीस ऑफ अ कंपनी बन जाते हैं। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो हमारे शेयर्स के, अब वो शेयर किसी भी टाइप का हो सकता है, आपके बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, स्टॉक की फॉर्म में हो सकता है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जो एक्सचेंजेस हमारे स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडर के बीच में होते हैं, उससे हम वो शेयर को एक्वायर कर सकते हैं और कंपनी का पीस बन सकते हैं, मतलब पार्ट बन सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको 6 टाइप के अभी बताए हमारे जो स्टॉक के मार्केट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी इसके अंदर कवर होती है। अब हमारी बात आती है ट्रेड लॉग्स पे। Now, trade logs are the actual trades which are executed. अब हम कोई ट्रेड खरीदेंगे तो उसके लिए जो लॉग्स हमारे डिस्प्ले होंगे वो बेसिकली जब हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन या कोई भी हमारे ट्रेड के परचेजिंग, तो वो उसके बाद हमारे लॉग बुक्स में शो करना शुरू कर देगा आफ्टर आवर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड परचेजिंग इट। तो बेसिकली वो ट्रेड्स ही हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं यहाँ पर। अब आती है बात ऑर्डर लॉग्स की। अब ऑर्डर लॉग्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्डर्स प्लेस्ड। ओके, ये है ऑर्डर लॉग्स। एंड आईपीओ लॉग्स आर बेसिकली, आईपीओ वैसे आईपीओ की फुल फॉर्म होती है हमारी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपना फर्स्ट शेयर, अपना जो पहला शेयर बेचती है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली आईपीओ बोलते हैं। When a private company first sells share of stocks to the public, now this is known as initial public offering. In essence, अगर कोई आईपीओ के बारे में ये बोले कि एक कंपनीज ओनरशिप इज बदल रही है, कंपनी की ओनरशिप बदल रही है फ्रॉम अ प्राइवेट टू पब्लिक ओनरशिप, तो इसको भी हम आईपीओ के अंदर कंसीडर करते हैं। बेसिकली वी आर ट्रांजिशनिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, तो दिस इज अ पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग व्हिच इज कॉल्ड आईपीओ लॉग्स। ओके, नाउ बहुत सारे फिल्टर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं, जैसे डेट, टाइम, प्राइस, क्वांटिटी, अकाउंट नंबर, जो थोड़ा बहुत नैरो डाउन कर देती है हमारी स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया, स्क्रिप्ट इश्यू or a bonus issue is when a company creates any new share or awards to the existing stockholders. Okay, so from this all these things, from the data itself, now the software, transactional data analysis and management system, ये सॉफ्टवेयर इस चीज का, इस सारे डेटा का यूज करके हमारे जो एनएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या हमारा एमसीएक्स हो गया, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन सब से डेटा जो आता है, ये ट्रेड, ऑर्डर एंड आईपीओ लॉग्स, डीमैट आल्सो, तो ये सारी चीजों का डेटा ये आपको एक सिंगल स्क्रीन में सिंगल क्लिक पे अवेलेबल करवाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसा पहली चीज है हमारी सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड। सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड वो होता है इसमें जो हमारा सेलर है वो एक क्वांटिटी डाले
और बायर उस क्वांटिटी को खरीद ले। जैसे इस इज अ वन वेयर द बायर एंड द सेलर enters the quantity and the price of the share they wish to transact at substantially same time, मतलब एकदम सेम टाइम पे वो शेयर को सेल कर रहा है और बाय कर रहा है, तो ये हमारी सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग के अंदर आता है। ये हम इसको ये बोल सकते हैं, ये हमारी थोड़ी बहुत हमारी क्रॉस डील भी है। क्रॉस डील का मतलब होता है कि जो सेलर और बायर के बीच में क्रॉस डील हो कि यार मैं बेच रहा हूं और आपको एकदम खरीदना है, तो ये बेसिकली टू टर्मिनल्स के बीच में हो रही है ऑफ डिफरेंट ब्रोकर्स। तो अगर एक ही ब्रोकर करवा रहा है तो हम सेम ब्रोकर के लिए हम बोलेंगे टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेम ब्रोकर, टर्म एज अ क्रॉस डील। ओके, तो ये हमारी सिंक्रोनाइज ट्रेड के अंदर आता है कि जब मैं एकदम कोई बेच रहा हूं और दूसरा खरीद रहा है सब्सटेंशियली एट द सेम टाइम, दिस कुड बी डन एंड इट इज कॉल्ड इन अ सिंक्रोनाइज ट्रेड। एकदम शेयर बेचा और खरीद लिया गया। अब इसमें अगला है सर्कुलर ट्रेडिंग। बेसिकली सर्कुलर ट्रेडिंग एक तरह का फ्रॉडलेंट फंड है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका पहले। जैसे एक कंपनी है ए, एक स्टील की कंपनी है ए, उसने अपना कुछ भी उसने सेल करा, शेयर सेल करा, वो किसी बी कंपनी ने खरीदा, बी कंपनी ने किसी सी कंपनी को बेचा और सी कंपनी से दोबारा ए कंपनी ने खरीद लिया, तो इट इज अ सर्कुलर ट्रेड। ये एक तरह की फ्रॉडलेंट स्कीम होती है जिसमें सेल ऑर्डर्स जो होते हैं वो एंटर्ड करे जाते हैं बायर से, जिसको पता होता है कि ऑफसेटिंग क्या है बाय ऑर्डर्स की, एग्जैक्टली एट द सेम नंबर ऑफ शेयर्स और उसी टाइम पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से ए पे, तो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम एट द सेम प्राइस। ओके, आइदर वो डाली जाती है या वो एकदम एंटर हो जाती है, हैव बीन आइदर और बी एंटर्ड, सेम प्राइस एंड सेम टाइम। तो ये ऑफसेटिंग जो है ब्रोकर के द्वारा बाय ऑर्डर्स के थ्रू डाली जाती है। ओके, तो ये हमारी हो गई सर्कुलर ट्रेडिंग। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली एलटीपी जैसे नाम ही बता रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे एक एनएससी का डे के क्लोजिंग से 30 मिनट पहले जो ट्रेडिंग होती है वो हमारा उस दिन का प्राइस माना जाता है। तो अगले दिन से जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो हम उसका डिफरेंशिएट निकाल लेंगे कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था इस शेयर का। मान लीजिए 9 तारीख को कुछ है और 10 तारीख को कुछ है, तो कंपैरिजन के लिए हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस को मैच करेंगे। तो ये बेसिकली यूजुअली डिफरेंस करता है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे से, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे ऑन एनएससी इज वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द ट्रेडिंग। लास्ट 30 मिनट जो होंगे ट्रेडिंग के उससे कंपेयर होगा। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ द डे इज एक्चुअल लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो एक्चुअल लास्ट ट्रेडेड है उस दिन का। इस चीज को हम एलटीपी बोलते हैं। अब एलटीपी में डे वाइज होता है, डे वाइज की पूरी एवरेज निकलती है जो हमारा सॉफ्टवेयर इजीली सिंगल क्लिक रिपोर्ट्स में निकाल देता है। ओके, इसी तरीके से इसमें एक चीज हम और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर बुक एनालिसिस। अब ऑर्डर बुक में सिंपल है, आपके सारे परचेजेस, सारे के सारे परचेजेस और सारे के सारे सेल, आपकी पूरी सेल के जो आप बेच रहे हैं उसके फॉर डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट प्राइस के लेवल पे वो सारी उस पर लिखी होती है। ओके, और कौन कौन से ट्रेडर्स जिसने ट्रेड करा है और जो इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस रिपोर्ट का एक बेनिफिट है कि एकदम रियल टाइम मार्केट डेप्थ डाटा के कंपैरिजन पे ये ट्रेडर्स जो करते हैं ये फाइनेंशियली आपके रिपोर्ट्स को दिखाते हैं, क्योंकि ये खुद फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। तो आपको ये कंप्रेहेंड कर देते हैं कि मार्केट के मूवमेंट और ट्रेडिंग के डिसीजन को लेके। इसलिए ऑर्डर बुक हमेशा मेंटेन रहती है जिसमें सारी लिस्टिंग होती है परचेजेस की और सेल्स की, वेरियस प्राइस पे डिफरेंट ट्रेडर्स करते हैं और जो भी उस ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उसकी डिटेलिंग के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वॉच ट्रेड्स, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ट्रेड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एक तरह की से ये राउंड ट्रिप ट्रेडिंग है एंड इट इज कंप्लीटली इलीगल प्रैक्टिस।
इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो बाय और सेल करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को उसी समय पे जब वो ऑर्डर कर रहा है। तो इसमें 100% जो है हमारी ये इलीगल होती है, क्योंकि एक तरह से राउंड ट्रेड चल रही है, ये एक तरह से सेल्फ ट्रेड चल रही है। तो सेल्फ का मतलब ये होता है कि खुद से खरीदी और खुद को ही बेची, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था मैनिपुलेशन जो स्टार्टिंग का था हमारा। मैनिपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इसमें हमें दिखती है, जो हमारे जो आईपीओ लॉस होते हैं, ट्रेड लॉस होते हैं, ऑर्डर लॉस होते हैं इसके अंदर। मैनिपुलेशन से क्या है कि मैं अगर कुछ बोलूँ कि मैं ये चीज़ मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये वाला जो शेयर है ये इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, उ उस हिसाब से मैंने ये मार्केट के अंदर बोल दिया। तो मेरा जो ये बोलना है ये मार्केट को मिसलीड कर रहा है, ताकि मैं अपने खुद के शेयर को डिसीव करूँ या कंट्रोल कर सकूँ आर्टिफिशियली, जिससे मैं उसका प्राइस सेट कर सकूँ। तो मेरे प्राइस की सिक्योरिटी रहेगी उसके अंदर। मुझे पता है कि मैंने मैनिपुलेट करा है तो मेरे प्राइस की सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है? उसके साथ-साथ 2 जो बहुत ज़रूरी हमारे की पार्टिसिपेंट है, जो प्राइस की मैनिपुलेशन को देखते हैं, मार्केट को मिसलीड करते हैं पूरी की पूरी। उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसको ऐसा करने से रोकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ऐसी मैनिपुलेशन को ही रोकता है और लोगों को मिसलीड होने से बचाता है। बेसिकली 2 टाइप की स्टॉक की मैनिपुलेशन होती है। एक होती है पंप एंड डंप, पहले उसको पंप करा शेयर को, फिर एकदम डंप कर दिया, छोड़ दिया। तो ये एक तरह की टेक्नीक है जो मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं या देखते हैं कि कैसे प्राइस इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, उस पे रेगुलेटरी बैठी हुई है। जो हमारी ऑथराइज है, जितने भी हमारे रेगुलेटरीज है या हमारी जो देखते हैं, चेक करते हैं कि यार ये चीज़ एकदम बढ़ रही है, पंप एंड डंप हो रही है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको स्टडी करना, या ये कौन कर रहा है, ये कौन-सा सोर्स पेन कर रहा है या कौन-सा पेन है जो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो इस चीज़ को वो स्टडी करते हैं और प्राइस मैनिपुलेशन को 2 चीज़ों के अंदर ये से स्टडी करके ये अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो इसके 2 की टेक अवेज़ हैं। एक तो मैंने आपको बताया पंप एंड डंप, दूसरा है पूप एंड स्कूप। मतलब पहले एकदम छोड़ दिया और फिर एकदम स्कूप कर दिया। तो ये एक तरीके से 2 हमारे जो है प्राइस की मैनिपुलेशन है। बाकी सोशल मीडिया, जो प्राइस की मैनिपुलेशन होती है सोशल मीडिया के यूज़ करके भी हो सकती है ना? उसने बोला कि मैं टेली मार्केटिंग कर देता हूँ अपने स्टॉक की और मैं इसको सोशल मीडिया के थ्रू या हाई स्पीड ट्रेडिंग के थ्रू या कोई भी अदर टेक्टिक्स में यूज़ करूँ, इंटेंशनली करूँ, तो उस स्टॉक की तो एकदम वैल्यू जो है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। तो मेरे हाथ में है प्राइस को मैनिपुलेट करना और स्टॉक को देखना कि मैं कैसे अपने स्टॉक को कूप एंड स्कूप या पंप एंड डंप से मैं उसको ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस ऐसा करके जो मैनिपुलेटर्स हैं वो प्रॉफिट ले लेते हैं प्राइस की मूवमेंट से। प्राइस बढ़ा तो उन्होंने एकदम सेल कर दिया। इस तरीके से वो प्राइस की मूवमेंट को एकदम स्टेडी करते हैं और इनके जो की टेक अवेज़ हैं, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे मार्केट को मिसलीड करते हैं और प्रॉफिट कर लेते हैं गेन। जैसे क्या हुआ था बेसिकली 2019 में चाइना ने द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसको हम पीबीओसी बोलते हैं, इन्होंने क्या करा, जो चाइनीज युआन है उसका डीआरआर रेट, डेली रेफरेंस रेट उन्होंने 7 युआन पर डॉलर कर दिया। फर्स्ट टाइम पूरे डेकेड में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना 7 जो डीआरआर है वो 7 युआन कर दिया। उसके साथ क्या हुआ, जो उनकी करेंसी है वो बेसिकली डिप्रिशिएट हो गई। किसके अगेंस्ट? डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि एक्सचेंज जो इंटरनेशनल है वो डॉलर है। उन्होंने अपनी जो डीआरआर है वो उन्होंने थोड़ा-सा डेप्रिशिएट कर दिया डॉलर के अगेंस्ट। तो उस केस में उन्होंने क्या करा, चाइनीज की जो एक्सपोर्ट है वो चीपर कर दी डॉलर्स के टर्म में। ओके, तो द रेट वाज सेट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर कि जो नए टैरिफ है वो 10% लगेंगे 300 बिलियन के एक्सपोर्ट पे।
मतलब ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करी कि $300 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। इसको लेके चाइनीज वालों ने अपना DRR है वो 7 UR पर डॉलर कर दिया। इससे चाइनीज को फायदा होने लग गया, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट होनी थी सितंबर के बाद। तो ट्रम्प ने तो चाइना को बोल दिया कि ये करेंसी मैनिपुलेशन है, एकदम चाइना जो है वो करेंसी मैनिपुलेटर कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। इस चीज में क्या हुआ कि ये डेजिग्नेशन को लिफ्ट करा गया थोड़े महीनों बाद, और टैरिफ जो था चाइनीज एक्सपोर्ट का वो रहा जनवरी 2022 तक। तो चाइनीज को बोल दिया, चाइना को बोल दिया कि आपने जो है वो बेसिकली करेंसी को मैनिपुलेट करा है, अपने डॉलर से कम कर दिया ताकि आपको टैरिफ कम देना पड़े जो ट्रम्प ने रिलीज करी थी। ओके, ये जो रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एकदम इजी वे में सॉफ्टवेयर को मैं आपको दिखाऊंगा तो एकदम आउटपुट की वे में आपको दिखेंगी। अभी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि वॉच ट्रेड्स क्या है, ऑर्डर बुक एनालिसिस या LTP वगैरह क्या है। ओके, इसी तरीके से एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड बेसिकली क्या होता है कि जब जो डायरेक्शन होती है प्राइस ट्रेंड की वो चेंज होती है गोइंग अप टू गोइंग डाउन और वाइस वर्सा। ये इसलिए होती है कि ट्रेड्स जो है वो उस पोजीशन से निकलना चाहते हैं और वो उस पोजीशन से निकल के एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। वो ट्रेंड होगा प्रायर टू रिवर्सल, और they will get out of once they will see the reversal underway। अगर रिवर्सल अंडरवे है मतलब आ रहा है या रिवर्सल का ट्रेंड चल रहा है, तो जो हमारा ट्रेड है वो उस ट्रेंड के हिसाब से अब भी हो सकता है गोइंग अप और गोइंग डाउन। इस चीज को रिवर्सल ट्रेड कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली काउंटर पार्टी। अब काउंटर पार्टी एनालिसिस में क्या होता है, काउंटर पार्टी का मतलब क्या हुआ मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक सेलर है, ट्रेड होता है, ट्रेड के एक साइड सेलर है तो दूसरी साइड होगा बायर। तो बायर का काउंटर पार्टी सेलर हो गया। तो जो काउंटर पार्टी होता है वो इंक्लूड करता है डील्स। किस किस के बीच में हो सकती है डील? ये इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकती है, ये बिजनेसेस के बीच में हो सकती है, दो बिजनेस के बीच में हो सकती है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकती है, गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकती है, इंडिया की गवर्नमेंट चाइना की गवर्नमेंट से, चाइना की गवर्नमेंट रशिया की गवर्नमेंट से, रशिया की गवर्नमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट से, ऐसा करके गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकता है या किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है। काउंटर पार्टी रिस्क भी एक चीज होती है। एक तो काउंटर पार्टी एनालिसिस होगी बायर और सेलर के बीच में, काउंटर पार्टी रिस्क भी एक चीज होती है जो ये देखता है कि जो अदर साइड है ट्रेड की, जो दूसरी साइड है ट्रेड की, वो पूरी फुलफिल कर पाए, वो it is unable to fulfill the end of the transactions। okay, so counterparty risk is the risk that the other side of the trade will be unable to fulfill their end of the transactions। okay, तो counterparty analysis के अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं। आप एक तरफ बाय देखेंगे, एक तरफ सेल देखेंगे और आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट रनर। फ्रंट रनर क्या होता है? फ्रंट रनिंग का मतलब ये है कि सबसे आगे भाग रहा है। तो इज अ ट्रेडिंग स्टॉक और एनी फाइनेंशियल एसेट ब्रोकर के द्वारा, बाय द ब्रोकर हु हैज द इनसाइड नॉलेज ऑफ द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ओके, मतलब फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के बारे में जिसको पहले से ही पता है, ऐसे ट्रेड ब्रोकर को बाय द ब्रोकर, okay, who has the inside knowledge of the future transaction that is about to affect the price substantially। जो आपको पता है कि ये ट्रेड जो है या ये शेयर जो है इसका फ्यूचर में, मतलब आज अगर 10 है तो फ्यूचर में इसका 50 हो जाएगा उसकी वैल्यू, उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको फ्रंट रनिंग बोलते हैं। ओके, तो ऐसी चीजों के लिए भी जो सेबी है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो उस चीज को एग्जामिन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और एनालाइज करती है सेवरल फंड हाउसेस को या फंड मैनेजर्स को जो ये फ्रंट रनिंग करते हैं, क्योंकि वो इनसाइड नॉलेज है, उसका बेनिफिट उठा के वो वाला शेयर या स्टॉक लेते हैं
वो सब्सटेंशियली उनको प्राइस में प्रॉफिट देता है इस चीज के लिए। तो एक तरीके से सेबी इनको पहचानती है अपनी टेक्निक्स को यूज करके, जिसको हमने रिपोर्ट के फॉर्म में बनाया है फ्रंट रनर। इसको वो स्टडी करती है और इसके थ्रू वो लोगों को पकड़ती है। ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग जो वर्ड है वो है ही ऐसा कि इनसाइडर ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स द ट्रेडिंग इन द पब्लिक कंपनी स्टॉक बाय समवन हु इज अ नॉन पब्लिक। ओके, मतलब ऐसी चीज पता होना पब्लिक की कंपनी के बारे में, पब्लिक की कंपनी के ट्रेडिंग के अंदर वो ट्रेडिंग कर रहा है उस इंफॉर्मेशन से जो नॉन पब्लिक है, मटेरियल है। सिर्फ वो कह रहा है कि मेरे को ये सिर्फ स्टॉक से पता चलिए फॉर एनी रीजन। ओके, insider trading involves trading in a public company stock by someone who has a non-public material information about the stock for any reason. Okay, insider trading can be legal and can also be illegal when the insider makes the trade. जब वो ट्रेड करेगा तब पता चलेगा कि ये लीगल है इलीगल है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो एक पब्लिक कंपनी की है, पब्लिक कंपनी के अंदर कर रहा है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन से, सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन से कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ मुझे ये पता थी। ओके, जैसे कौन करता है ये? कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज हु ट्रेडेड कॉर्पोरेट स्टॉक आफ्टर लर्निंग अबाउट द नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। ओके, जो इंफॉर्मेशन अभी रिलीज ही नहीं हुई है उस इंफॉर्मेशन को पहले ही यूज करके वो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या अपने बिजनेस एसोसिएट्स को वो इंफॉर्मेशन टिप दे देता है। ओके, टिप दे दी उसने, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी एम्प्लॉइज ऑफ एनी लेवल, टिप देते ही वो स्टॉक को इलीगली दूसरे तरीके से खरीद रहा है किसी दूसरे पर्सन से, फैमिली, फ्रेंड्स और एनी बिजनेस एसोसिएट्स, और फिर वो उसका बेनिफिट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ओके, तो ये चीज होती है हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इनिशियल, मैंने आपको बताया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO bidding. Now IPO bidding is basically company's first share of the company available to public, and there is IPO bidding on offered stock. जो stocks होते हैं उन पे IPO bidding भी होती है। Stocks are allocated to successful bidders. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि IPO बहुत सारी कंपनीज है, जैसे पेटीएम है या अलग अलग कंपनीज है, वो अपने IPO रिलीज कर रही है। तो उसके हिसाब से जैसे ही वो IPO रिलीज करती है, देयर इज IPO बिडिंग होती है, IPO की बिड करा जाता है। उस बिड से जो IPO जो खरीदता है वो सक्सेसफुल बिडर को मिलता है, और उसके थ्रू जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में 100% प्रॉफिटेबल होता है। कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है उस चीज। अगर वो IPO सही रहा, उसकी सारी रिलीज वगैरह सही रही और उसकी वर्थ दिखी लोगों को। ओके, so an initial public offering refers to the process of offering shares of a private organization to any public in a new stock issuance. मतलब कोई नया स्टॉक का इश्यू हो रहा है किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिकली, उस चीज को IPO के साथ हम देखते हैं। तो इसमें एक IPO की बिडिंग की पूरी रिपोर्ट बनी हुई है, कंसल्टेशन रिपोर्ट वगैरह, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो उसको रिक्वायरमेंट्स को पूरी फिल करना होता है। ये हमारा ये सारी चीज देखती है हमारी SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो होल्ड करती है IPO। ठीक है, तो वो होल्ड करती है, तो इसका मतलब उसके पास कंपनी का उस IPO का जो है शेयर भी है, तो वो एक प्राइमरी मार्केट में लगाता है, दिखाता है आपको। तो वो जो शेयर है वो पब्लिकली ऑफर करता है, वो कंपनी हायर करती है इन्वेस्टमेंट बैंक को, मार्केट को, पॉच डिमांड्स को, ताकि मार्केट थोड़ी डिमांड बढ़े। उससे वो IPO सेट करता है और जिस डेट पे सेट करता है, जिस टाइम पे सेट करता है, वो रिलीज कर देता है पब्लिकली, प्राइवेट कंपनी का IPO पब्लिक। तो IPO can be seen existing strategy for the company's founder and early investor realizing that the full profit from the private investment, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पब्लिकली रिलीज करके उसको इस तरीके से शेयर करा जाता है
इसमें बहुत सारी चीजें यूज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि सोशल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग वगैरह यूज होती है, जिससे उसका प्राइस तो है थोड़ा सा पंप होता है या बहुत पंप होता है, कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, मार्केट कंसंट्रेशन बेसिकली, जो मार्केट की कंसंट्रेशन होती है, जो इसके अंदर आती है कंसंट्रेशन रिपोर्ट, कॉन्सेंट्रेट कर रही है वो चीज। तो कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड व्हेन जो हमारी फर्म्स है, जो हमारी कंपनीज है, फॉर द लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट। It measures the extent of domination of sales by one or more firms in a particular market. मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, फर्म्स कंपनीज तो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट लेकिन पर्टिकुलर मार्केट में मार्केट कंसोलिडेशन इज मेजर्ड बाय कंसंट्रेशन रेशियो। वो तो रेशियो में मेजर होगी। अगर किसी मार्केट का हम एक एक है सेलर, उसके या एक से ज्यादा है और आईपीओ रिलीज हो रहे हैं, तो वो किसी रेशियो में तो हम उसको नापेंगे ना, तो उस रेशियो को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन रेशियो। ओके, नाउ the last line is basically we can plot the data in a visual i2 analyst notebook premium, so that we can understand it more in a better way. Like मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होता है उसका वॉल्यूम बहुत है, 40 लाख 50 लाख एक स्क्रिप्ट का। तो उसको उसको इजी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम उसको एनालिस्ट नोटबुक पे भेजते हैं, ताकि हमें वो इजीली समझ आए। ठीक, इसमें यही बताया गया है नेक्स्ट स्लाइड में कि data from TDAMs will be visualized. Analyst will have various analysis options for highlighting the important information on the analytical chart with the help of conditional formatting. Basically, I2 is having many conditional formatting, many cluster management and many chart layouts, जिससे हम अपने डेटा को easily देख सकते हैं, समझ सकते हैं, and it is quite fast also. So इसमें क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हम क्लस्टर्स को इसमें से निकाल देंगे। We can extract out the clusters from the resulting chart to identify potential kingpins of the rackets. मतलब जो उस रैकेट में मेन रोल प्ले कर रहा है, हम उसको इजिली देख पाएंगे। तो एनालिस्ट कैन सेव दिस चार्ट फॉर हिस्टोरिकल यूज। मतलब कल अगर उसको बाद में भी उस चार्ट को देखना है, समझना है, या एक एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी बनाना है बाद में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो भी रख सकता है। बाकी कोई नए केस से उसको मैच भी कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। जो सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन है, जहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें ये दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें आप कनेक्शन, यू कैन सी thing called connection. Connection can be local and the server also. Okay, so the software can run on a local machine and can run on a client server architecture base also. Okay, so it is protected by a username and password. तो उसका एक पासवर्ड और यूजर नेम होता है, जिससे वो प्रोटेक्ट होता है सॉफ्टवेयर, ताकि कोई अनऑथराइज तरीके से उसको एक्सेस ना कर पाए। प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज। ओके, ओके, नाउ लेट मी शो यू द सॉफ्टवेयर। ये एक बेसिक आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, तो मेरी आवाज आप सबको आ रही है। ओके, सो दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ इंपोर्ट स्पेक्स। I have told you earlier the data is very huge, like 30 to 40 lakhs. Then basically वो एक script के form में आता है। If we have the script data from like from January to March, we can import all the script data in a single specification of that file. We need to specify the software that what is the batch date, what is the symbol, what is the series, what is the market type,
what is the seller order number, what is the buy order number, and we need to map the column headers with the software columns to make the software understand what is the file format, what is the date format, what is the time format. सॉफ्टवेयर को समझ में तो आएगा उससे कि वो उसका एक्सएलएस फाइल या सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर रहा है, या उसका जो डेट टाइम है, लाइक उसका डेट टाइम क्या है, डेट मंथ ईयर है या आर मिनट सेकंड्स है, उसके हिसाब से उसका जो सेलर है, बायर पेन, सेलर पेन, उसका बाय ऑर्डर नंबर, सेल ऑर्डर नंबर, बाय मेंबर नेम, सेल मेंबर नेम, या उसका यूजर आईडी, यूजर नंबर, डीलर नेम, डीलर आईडी, डीलर की सारी डिटेल्स, वो कौन-कौन से कॉलम में है। तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हम यूजर की वो फाइल इंपोर्ट करेंगे, उस स्क्रिप्ट की वो फाइल इंपोर्ट करेंगे। फाइल इंपोर्ट करने के बाद हम सॉफ्टवेयर में उसको डिफाइन करेंगे, जैसे इस स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया। स्क्रीन पे डिफाइन करने के बाद हम उसको अपने स्पेसिफिकेशन से, जो राइट साइड आप देख पा रहे होंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग या फाइनल स्पेक्स करके एनएससी के साथ मैच करेंगे, फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इसमें एक और चीज है, फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आप उसको सस्पेक्ट लिस्ट से भी मैच कर सकते हैं। सस्पेक्ट लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट पैन, जैसे सोर्स पैन है या आपका कोई बायर पैन है या आपका सेलर पैन है, आपको वो आपने पहले से ही उसकी लिस्ट बनाई हुई है सॉरी, आपने कोई पहले से उसकी लिस्ट बनाई हुई है कि ये सस्पेक्टेड पैन्स की लिस्ट है, जिसको मैं मानता हूं कि ये थोड़े ठीक नहीं है। उन सारे पैन की लिस्ट को आप पहले से ही एक सस्पेक्ट लिस्ट की फॉर्म में डाल सकते हैं, वॉच लिस्ट की फॉर्म में डाल सकते हैं। उन सबका डेटा ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा अलग से रिपोर्ट में। It will match all the data of those suspected PAN to the data which you are importing. It will give a separate report to that. Okay, so ये है हमारा जो सस्पेक्ट मैचिंग है, वो भी हम कर सकते हैं। ये एक रिपोर्ट मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर की वर्किंग भी दिखाऊंगा। ये जैसे एक स्क्रिप्ट हमने देखी, अब यहाँ पर कितने स्क्रिप्ट हैं, अशोक ले है, सेंट्रल डेक्स है, सिप्ला है, क्रोम ग्रिव है, ये सारे हमने इसके स्क्रिप्ट डाले हुए हैं, जो लगभग 32,78,030 रिकॉर्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स लिखे हुए हैं 9500। ये एक छोटा सा रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है, शोइंग यू ऑल द स्क्रिप्ट ऑल टुगेदर, हु इज बाइंग, हु इज सेलिंग द स्टॉक एट दैट टाइम एंड डेट फॉर एमएलटी एंड एवरीथिंग। ठीक है, सेलर नेम भी आ रहा है, बायर नेम भी आ रहा है, इसका एलएमटी ऑर्डर नंबर भी आ रहा है, स्क्राइब नेम भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। ओके, तो ये जो ऊपर फिल्टर्स हैं, ये सारे हमारे यूनिफाइड फिल्टर्स हैं, जो आपको आप चाहते हैं कि ये सारी स्क्रिप्ट नेम आपको सिलेक्ट नहीं करनी, आपको एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नेम पे काम करना है, आप वो स्क्रिप्ट नेम सिलेक्ट करिए। ये आपको सारी पेन भी नहीं देखनी है, आपको बस ये देखना है कि क्या अरविंद वाली स्क्रिप्ट में ये वाले पेन हैं, तो आपने वो पेन लिए और आपने पेस्ट कर दिए, आपने अरविंद को टिक करा, अप्लाई फिल्टर करा, अगर वो वाली स्क्रिप्ट होगी तो वो सारे का सारा आपको डेटा दिखा देगा। लेफ्ट साइड पे ये है हमारा एक ट्री लाइक नेविगेशन है, जिससे बड़ी इजी तरीके से आप रिपोर्ट को क्लिक करेंगे और वो रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। ये कुछ टॉप एंड क्लाइंट एंड ब्रोकर इन प्राइस मैनिपुलेशंस की रिपोर्ट है, सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग्स की रिपोर्ट है। ओके, नाउ आई विल शो यू द सॉफ्टवेयर। अभी तो ये स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखा रहा था, नाउ आई विल शो यू द सॉफ्टवेयर। सो ये देखिए ऊपर ये है एनएससी, ये है बीएससी, ये है एनसीएक्स। बेसिकली ये रिपोर्ट का पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीडैम्स रिपोर्ट का पार्ट है, इसके साथ साथ एक टीडैम्स इंपोर्ट भी है। नाउ टीडैम्स इंपोर्ट इज डिफरेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट सर्वर के हिसाब से डिजाइन्ड है। Can we see the full screen? The full screen is not visible because not a presentation mode. Shekhar? Now it is, sir. Now it is. Okay, thank you for correction, sir. So ये जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी हमारा टीडीएम्स का रिपोर्ट का पार्ट है। इसके
अलावा एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं टीडैम्स की इंपोर्ट। जैसे मैंने बताया आपको कि जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन इस तरीके से है कि वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ इंपोर्टिंग करेंगे, और या फिर एक उन्होंने सोचा हुआ है कि एक जो क्लाइंट है हमारा, जो एक बंदा है वो हमारा सिर्फ रिपोर्टिंग देखेगा। उनका अपना तरीका है कि आप आज रिपोर्ट देखिए, आप 2 दिन बाद देखिए, आप 3 दिन बाद देखिए। तो इंपोर्टिंग उनकी चल रही है रेगुलरली फ्रॉम द टीडैम्स इंपोर्टिंग विजार्ड। एंड ये हम जो देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं टीडैम्स का रिपोर्टिंग विजार्ड, जो हमारा विजार्ड है। ओके, सो इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रिप्ट नेम है 514348। इसमें आप देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट नेम है, बायर का पैन है, बायर का नेम है, सेलर का पैन है, सेलर का नेम है, बाय ऑर्डर नंबर है, एलएमटी है बाय ऑर्डर का, सेलर का बाय एलएमटी है एकदम पहले है आर, मिनट, सेकंड एंड मिली सेकंड्स। टाइम का डिफरेंस है कि किस समय पे बेचा गया, किस समय पे खरीदा गया। ट्रेड का प्राइस है, एलटीपी का डिफरेंस है, एलटीपी के परसेंटेज है, ट्रेड की वैल्यू है। तो इसी तरीके से जो आपके रिपोर्ट में जितने भी कॉलम्स आते हैं उस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लेता है और आपको इजी इंटरफेस की तरह यहाँ पर ये रिपोर्ट दिखा देता है। Okay, it will show you all the result from all the scripts all together in a single window with all these data like cell member name and buy dealer name, everything, buy location address, sell location address, whether it is a buy activity type or not, market type, ISIN. Okay, all the things. So this is formatted trade logs. इसमें एक और चीज आती है जैसे मैंने आपको बताया था, सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग है हमारा। तो सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग में मैं क्लिक करूंगा, इसमें मैं कोई पैन नंबर पेज अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ और मैं इनको बोल देता हूँ कि हमारा बायर और सेलर पैन हो सकता है, उसके हिसाब से ये उसका टाइम डिफरेंस के बिटवीन का क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से सारा जो रिजल्ट है उसको मेरे को इस सिंगल स्क्रीन पे दे देगा। अभी 2 मिनट वेट करते हैं हम। जैसे ये मैंने कुछ पैन्स यहाँ पर डाले, मैंने बोल दिया कि बायर भी हो सकते हैं और सेलर भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से वो पैन नंबर्स की उसने सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग करके बता दी। जो उसके रेट का डिफरेंस है वो इक्वल कर दिया, टाइम का डिफरेंस इक्वल कर दिया, टाइम का डिफरेंस भी इक्वल कर दिया मैंने, उसके हिसाब से उसने इन 7 पेन की दिखा दी। कभी वो बायर है, कभी वो सेलर है, उस हिसाब से उसने उसका रिजल्ट दिखा दिया। जैसे उसका सम दिखा दिया, सिंक्रोनाइज की क्वांटिटी दिखा दी, परसेंटेज दिखा दिया मार्केट का वॉल्यूम के हिसाब से कि सिंक्रोनाइज वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट का वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, उसके हिसाब से उसने सारा रिजल्ट दिखा दिया। नंबर ऑफ सेल्स दिखा दिया, नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स दिखा दिया, नंबर ऑफ डेज दिखा दिए, ये सारी चीजें उसने दिखा दी। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेल्फ एंड वॉच ट्रेड्स। मैंने आपको बताया भी था, वॉच सेल्फ ट्रेड जो खुद कौन कर रहे हैं, तो ये भी सामने सामने आपको दिख जाएगा। जैसे मैं पर्टिकुलर देखूं एक धीरज कुमार शर्मा वाला, ये बाय ब्रोकर नेम आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए सेल भी यही कर रहा है, बाय भी ये कर रहा है, और इसमें दिखा रहा है कि सेल की ट्रेड की क्वांटिटी कितनी है, सेल का ट्रेड परसेंटेज कितना है मार्केट को, और सम ऑफ द एलटीपी डिफरेंसेस कितना है, सेल और क्लाइंट का परसेंटेज कितना है वॉल्यूम के हिसाब से, सेल कितने करे, बायर कितने करे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सेल्स और टोटल नंबर ऑफ सेल ट्रेड्स, ये सारा बताएगा आपको सेल्फ एंड वॉच ट्रेड एनालिसिस। Okay, now first trade analysis. First trade analysis basically the buy client analysis and the sell client analysis based on the PAN number for that particular scribe. उसमें ये सारी चीजें आएंगी, आपकी पैन नंबर आएगा, उसका सम आएगा एलटीपी का डिफरेंस का, नंबर ऑफ फर्स्ट ट्रेड्स आएंगे बेसिकली, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो फर्स्ट ट्रेड्स की है, तो नंबर ऑफ फर्स्ट ट्रेड आएंगे कि इसके फर्स्ट ट्रेड हुए थे, वो कितने फर्स्ट ट्रेड है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ये इसकी, ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, और इसका मार्केट के साथ इसका परसेंटेज कितना है वॉल्यूम के साथ। इसी तरीके से यहाँ बाय का आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आ रहा है सेल का कितना है हमारा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड एनालिसिस हो गया।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्रंट रनर। मैंने एक पेन लिया, मैंने उसको बाय में डाला, मैंने उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स पे यूज करना शुरू किया, मतलब मैंने देखना शुरू कर दिया कि मेरे स्क्राइब के अंदर वो कैसे शो कर रहा है। तो इसने इस पर्टिकुलर ही पेन का मेरे को इतनी डेट्स में रिजल्ट दिखा दिया और बता दिया कि बायर पेन में ये है और सेलर पेन में ये अलग अलग है। जैसे कभी अजीत से कर रहा है, कभी वंशिका से कर रहा है, कभी प्रोमिला से कर रहा है, कंचन, धीरज। तो इसमें पूरी की पूरी लिस्टिंग आ जाएगी पर्टिकुलर बाय पेन के रिस्पेक्ट में। जब मैं कोई पेन पेस्ट करूंगा तो बता देगा कि फ्रंट रनिंग में है ये पेन, कौन कौन से दिन है ये भी बता देगा। नाउ ये है टॉप क्लाइंट एनालिसिस। मैंने कुछ पेन लिए, मैं वैसे तो ये ग्रॉस बाय दिखाएगा, टॉप 10 दिखाएगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यही वाले पेन डालूं, अगर मैं 2-4 यहाँ से दूंगा पेस्ट करूँ तो इनका दिखाएगा। तो ये ग्रॉस बाय भी होगा, ग्रॉस सेल भी होगा, नेट सेल भी होगा और नेट बाय भी होगा। तो मैं जैसे ही कोई टॉप 10 देखूंगा इसमें तो वो सभी का दिखा देगा कि इस मानव नरेश भाई पटेल का जो है ग्रॉस बाय इतना है, ग्रॉस सेल इतना है, नेट क्वांटिटी इतनी है, मार्केट वॉल्यूम इतना है, मार्केट का बेचने के हिसाब से मार्केट का वॉल्यूम इतना है और खरीदने के हिसाब से मार्केट का वॉल्यूम कितना है। तो उसका परसेंटेज क्या हुआ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कितनी ट्रेडेड क्वांटिटी हुई, वो सारी चीजें दिखाएगा। ओके, नाउ मैंने बताया था सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग, जैसे मैं पर्टिकुलर एक पेन को डालूं और इसके हिसाब से सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग के हिसाब से रिजल्ट आ। ओके, नाउ दिस अ थिंग मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन रिपोर्ट होती है, जो कॉन्सेंट्रेटेड रिपोर्ट आती है आईपीओ में, ये आईपीओ के अंदर आता है ये चीज। इसमें मैंने यहाँ से मैं ब्रोकर के हिसाब से निकाल सकता हूँ, सब ब्रोकर एजेंट के हिसाब से निकाल सकता हूँ, टर्मिनल लोकेशन आईडी के हिसाब से निकाल सकता हूँ, एप्लीकेशन की कैटेगरी, जैसे मैं एप्लीकेशन की कैटेगरी के हिसाब से भी मैं इसको निकाल सकता हूँ कि एप्लीकेशन की कैटेगरी क्या है, एंकर है, एम्प्लॉय है, एनएलएल है, क्यूआईबी है, ये रिटेल है। तो इसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में मैं नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इसको भी देख सकता हूँ। तो उसमें अप्लाई क्वांटिटी भी आएगी और इसके अंदर जो है अप्लाई क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी के परसेंटेज के रिस्पेक्ट से भी आएगा। ओके, तो मतलब अप्लाई क्वांटिटी भी आ रही है और अलॉट जो अलॉट तो हो रखी है अलॉटेड क्वांटिटी भी आ रही है और उसका परसेंटेज भी आ रहा है कि कितना क्राइटेरिया का रखा है इसको अप्लाई क्वांटिटी का और टोटल क्वांटिटी के हिसाब से, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी आ रही है। ओके, तो एक ये चीज है। मैंने एक चीज आपको बताई कि डीमैट जो हमारा होता है, डीमैट समरी जो होती है हमारी, डीमैट बेसिकली हमारा अकाउंट वो होता है जो हमारे सिक्योरिटीज को होल्ड रखता है। जैसे हमारा बॉन्ड्स हैं, शेयर हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इसके जो है हम ये सारी चीज करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो ये हमें डिजिटली चाहिए होता है कि हमें कुछ ट्रेड करना है, कुछ ऑर्डर करना है, इसके लिए शेयर मार्केट में, तो हमें इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है जो हमारी सिक्योरिटीज की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे बॉन्ड, शेयर्स और मल्टीपल फंड्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेटेड ट्रेड में तो हमारा ये पूरा स्क्राइब आ गया, एमसीएक्स का पूरा, मल्टी कम्युनिटीज का पूरा एक्सचेंज आ गया कि बाय नेम और ये सारी चीजें इसकी इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, बाकी एक रिवर्सल ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था, जब जो ट्रेड है कभी एकदम ऊपर से नीचे आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, उस चीज को वो इसके अंदर आती है। मैं इसको कैटेगराइज भी कर सकता हूँ कि मेरे को बायर या सेलर के हिसाब से देखना है या बायर एंड पर्टिकुलरली ये बायर और ये सेलर के हिसाब से। ओके, तो मैं इसमें क्या करूंगा, डेट और पेन 1 ले लिया, पेन 2 ले लिया, उसके हिसाब से ये पेन 1 का सेल का रेशो और पेन 2 का बाय के रेशो, मतलब एक पेन बेच रहा है और एक पेन खरीद रहा है, तो पर्टिकुलर शेयर और कौन सी डेट को खरीद रहा है। जैसे ये 9/3/2012 का है, इस डेट पे ये AKG सिक्योरिटीज कंसल्टेंसी जो ये बेच रहा है 62 है इनका रेशो। तो इसमें जो जब पेन 2 बेच रहा है 1 को तो 32 है, तो इसका रिवर्सल क्वांटिटी कितना हो गया 33। बेच रहा है 33, खरीद रहा है 33, पेन 1 से पेन 2, और पेन 2 से पेन 1 जब खरीद रहा है तो 33 खरीद रहा है। इसमें जो परसेंटेज है रिवर्सल क्वांटिटी की वो 52 हो गई। इसके हिसाब से इसका ट्रेड्स आ रहा है हमारा कि इसका ट्रेड्स कितना है, और इसका कोई अगर मार्केट के हिसाब से वॉल्यूम है इस ट्रेड का तो वो आ जाएगा। ठीक है सॉरी, तो ये हमारा
जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया टीडैम्स, कोई भी स्क्राइब हो, चाहे एक स्क्राइब हो चाहे 4 स्क्राइब हो, सबका डेटा एक तरीके से एक ही विंडो के अंदर आएगा और आप डेटा को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। जो भी डेटा होगा आप इसके रिलेटेड ट्रेड्स भी देख सकते हैं, इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्मेट में, चाहे CSV में करिए, XLS में करिए, TXT में करिए, ताकि आप उसकी फर्दर एनालिसिस कर पाएँ, जो भी आपने आउटपुट निकाला है अपना। बाकी जो फिल्टर्स हैं, एक्सेल लाइक फिल्टर्स हैं इसमें रिपोर्ट्स वगैरह में, जो आपके काम को और आपके एफर्ट्स को बहुत कम कर देंगी। जो रिपोर्ट्स है वो जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हमारी, वो वैसे ही सिंगल क्लिक है, तो वो बहुत हेल्पफुल है फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, तो एक इसमें मैं एक चीज और देख लेता हूँ। ओके, सो किसी को कोई आप में से किसी को कोई डाउट या कोई सवाल है आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मीनवाइल मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम। आप चैट में भी लिख सकते हैं अपना आंसर या क्वेश्चंस, जो भी आपको किसी भी पॉइंट की क्लैरिटी नहीं हुई या किसी चीज की, तो आप मेरे से चैट पे भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक्सीलेंट, काफी सारे नए टर्म्स सीखने को मिले और कई चीजें, कई स्क्रिप्ट रिलेटेड चीजें, जैसे आपकी सेल्फ ट्रेड्स और आपकी सर्कुलर ट्रेडिंग और पंप और डंप वगैरह, स्कूप एंड पुश और वो, तो ये सब जो है काफी इंटरेस्टिंग था। अब अगर क्वेश्चंस अगर नहीं हैं तो हम यहाँ पर हम स्टॉप कर सकते हैं आपका। आई विल नीड ओनली 2 मिनट्स सर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। मेरा एक PPT में मैंने कहा, ये तो मैंने रिपोर्ट्स के फॉर्म में दिखाया था, तो मैंने आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अंदर ही दिखाया। 2 मिनट दीजिए मेरे को। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, जिसमें एक स्क्रीनशॉट शेयर है क्लाइंट ब्रोकर एलटीपी एनालिसिस का। सर, इज माय स्क्रीन क्लाइंट ब्रोकर एलटीपी एनालिसिस? ओके, थैंक यू। तो इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वॉश ट्रेड एनालिसिस, IPO कंसिडरेशन रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताई थी कि हम इसमें एक इशू साइज भी डाल सकते हैं, जिसमें सिटी के हिसाब से हम रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो है बेसिकली ये, कि हम डेटा को, यूजर कैन सेंड द डेटा ऑफ एवरी ट्रेड टू द I2 चैट। मतलब जो भी उसको डेटा I2 के लिए रखना है, वो उसको I2 के चैट पे भेज सकता है, जो उससे उसको विजुअली डाटा को समझ पाए। जैसे ये देखिए, आप देखिए चार्ट आपको दिखेगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, क्योंकि डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है। तो मैंने उस डेटा को, वाले चार्ट को जैसे ही मैंने जूम करा, तो इसने मेरे को कितनी क्लैरिटी कर दी कि ये VP पटेल कोई JKN सिक्योरिटीज से कुछ ट्रेड रिवर्सल कर रहे हैं, और वो ऊपर वाले चंद्राना इंटरमीडिएटरी ब्रोकर से कुछ रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके से क्रॉस सीज कैपिटल भी रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, एंड वो निखिल सिक्योरिटीज से रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। निखिल वाले जो हैं वो VP पटेल से दोबारा रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ ये जो पोर्शन है, इसको क्लस्टरिंग के फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो यूजर कैन सेंड द डेटा टू एनालिस्ट नोटबुक फ्रॉम ऑल दोस रिपोर्ट व्हिच नीड्स टू बी विजुअलाइज्ड। इसमें हम जो फिल्टर्स हैं इजीली लगा सकते हैं और डेटा को हम विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा था। अब ये वाली सर्कुलर ट्रेडिंग की रिपोर्ट थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो थोड़ा आ रही थी कि सर्कुलर ट्रेड्स की फॉर्म में भी इजीली हम पेन यहाँ पर डाल सकते हैं। हमें बायर पेन के हिसाब से देखना है, हमें सेलर पेन के हिसाब से देखना है, या हमें बायर और सेलर दोनों के हिसाब से देखना है, उसमें हम सीधा पेन के हिसाब से उसका
देखेंगे कि पैन नंबर ये है, इसका बाय क्लाइंट नेम ये है, उसका सेलर पैन ये है, सेलर का क्लाइंट नेम ये है, बाय की क्वांटिटी इतनी है, सेल की क्वांटिटी इतनी है। उस हिसाब से हमने उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स देख सकते हैं इजिली कि इसके नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ परसेंटेज ट्रेड्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो ये लास्ट रिपोर्ट थी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आपका किसी का कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे रिगार्डिंग दिस सेशन। Excellent. So if there are no more questions, anybody wants to ask any question, please raise your hand, or you can unmute yourself and ask. Otherwise, we are going to Pragati Maidan. We have an event happening there today. This is the India International Security Expo. This is in Pragati Maidan, New Delhi. If you are nearby, please drop in. We have a very large stand actually at 507 A and D. So come and look for Forensics Group. I'm sure you'll find us. Okay, bye-bye and see you next Friday. Have a good weekend. Thank you very much. Thank you very much.